کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بیمار پڑ گئیں۔ اس وقت حضرت شیت علیہ السلام نے اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو جمع کیا اور فرمایا، ہماری ماں کا جسم بھی اب ہمارے باپ کی طرح بے جان ہونے لگا ہے۔ یہ سن کر سب اولاد اپنی ماں کے گرد اکٹھا ہو گئی، لیکن حضرت حوا نے نہایت سکون سے سب کو باہر بھیج دیا اور فرمایا، میرے بچوں، جس طرح تمہارے والد دنیا سے رخصت ہوئے، اب میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ سب باہر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کیا تھا؟ انسانوں کی تخلیق سے پہلے یہ کائنات کیسی دکھتی تھی؟ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب زمین اور آسمان نہیں تھے تو ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا اور یہیں سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اسی کے بعد اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا، لکھ، کو قلم نے اللہ کے علم کے مطابق قیامت تک ہونے والا ہر واقعہ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہفتے کے دن زمین بنائی گئی، اتوار کو پہاڑ وجود میں آئے تاکہ زمین کو استحکام ملے، پیر کے دن درخت اگائے گئے، منگل کے دن مصیبتیں اور بیماریاں پیدا ہوئیں، بدھ کے دن نور تخلیق کیا گیا، جمعرات کو جانور وجود میں آئے اور زمین پر پھیل گئے، اور آخر کار جمعے کے دن عصر کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی انسان کو سب سے آخر میں تخلیق کیا گیا تاکہ جب وہ زمین پر آئے تو اس کی تمام ضروریات پہلے سے تیار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور نسل انسانی کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ ان سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا کیے جا چکے تھے۔ فرشتے نور سے بنائے گئے اور ان کا اصل مقام آسمان ہے۔ وہ زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ جنات آگ سے بنائے گئے، اور ابلیس جو بعد میں شیطان بنا وہ بھی انہی میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات کو زمین پر بسایا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے ان کو شکست دی، اور جنات سمندروں اور جزیروں میں جا کر چھپ گئے جہاں وہ آج تک آباد ہیں۔ انہی جنات میں ایک تھا عزازیل، جو عبادت میں مشہور تھا، لیکن تکبر نے اسے شیطان بنا دیا۔ ابلیس جو پہلے عزازیل کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک نہایت عبادت گزار جن تھا، مگر نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کہا گیا۔ اس کا ایک تخت پانی پر ہے، مگر یہ کہاں ہے اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنات میں اتنی فہم و فراست نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ عقل والا بھی انسان کے 10 سالہ بچے کے برابر سمجھ رکھتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، ایسی مخلوق کیوں بنائی جائے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا حکم دیا تو پوری زمین سے مٹی لائی گئی، اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگوں میں ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید، بعض سیاہ اور درمیانی رنگ۔ قرآن میں مٹی کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا، جیسے تراب یعنی خشک مٹی، تین یعنی گیلی مٹی، ہما مسنون یعنی بدبودار مٹی، اور فخار یعنی پکی ہوئی کھنکدار مٹی۔ جب مٹی کو پانی سے گیلا کیا گیا تو وہ لسدار بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کا ڈھانچہ بنایا اور ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیا تاکہ وہ مختلف حالتوں سے گزرے۔ جب یہ ڈھانچہ خشک ہو گیا تو ابلیس اس کے پاس آتا رہا۔ اس نے ڈھانچے کو ٹھوکر ماری تو آواز آئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ پیٹ والا ہے تو اس نے کہا، یہ مخلوق خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرے تو گھبرا گئے۔ ابلیس نے بھی قریب آ کر کہا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ اس کے منہ کے راستے اندر جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ گھبراؤ مت، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا
तो मैं उसकी नाफरमानी करूंगा। यानी रूह फूंके जाने से पहले ही इब्लीस की इंसान के साथ दुश्मनी वाज़ेह हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर की तरफ दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तेरा रब तुझ पर रहम फरमाए। जब रूह आंखों में पहुंची और उन्होंने जन्नत के फल देखे तो वो हैरान हुए। फिर जब रूह पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, हालांकि अभी टांगों तक रूह नहीं पहुंची थी। जब मुकम्मल रूह डाल दी गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान उनके सामने जाहिर हो गए। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने कहा, जी हां, तू ही हमारा रब है। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? इब्लीस ने कहा, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तुझे जन्नत में तकब्बुर का कोई हक नहीं। इब्लीस ने मोहलत मांगी कि कयामत तक मौत ना दी जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे एक वक्त मुकर्ररा तक मोहलत है। इब्लीस ने वादा किया कि वो हर तरफ से आकर लोगों को बहकाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं, और उन्हें शुक्रगुजार ना पाएगा सिवाय उन मुखलिस बंदों के। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं होगा, मगर जो तेरा पीछा करेंगे उन सब को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यूं सबसे पहला गुनाह तकब्बुर करार पाया, और उलमा के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ भी यही तकब्बुर है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया। जब वो अपने पैरों पर खड़े हुए तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों के पास जाओ और उन्हें सलाम करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा जो आपस में मोहब्बत और तोहफे की तरह दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। वो आसमानों जमीन की हर शय का नाम और उसका इस्तेमाल जानते थे। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इन चीजों के नाम पूछे तो वो ना बता सके। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बयान कर दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? एक दिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनकी हमसफर बने। जब हजरत आदम बेदार हुए तो उन्होंने हजरत हव्वा को पास पाया, पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं औरत हूं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कयामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थीं। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें नूर का लिबास पहनाया था। इब्लीस ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू किया और अल्लाह के मना किए गए दरख्त की तरफ माइल किया। उसने झूठी कस्में खाई और कहा कि ये दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा। आखिरकार उसने दोनों को बहका दिया और जैसे ही उन्होंने इस दरख्त से खाया, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो गई। उसी वक्त उनसे नूर का लिबास छीन लिया गया और वो बरहना हो गए। दोनों शर्मिंदा होकर दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे, लेकिन इस गुनाह के बाद उन्होंने गुरूर या इनकार नहीं किया, बल्कि फौरन अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अपने गुनाह का एतराफ किया और सच्चे दिल में से माफी मांगी। इससे मालूम होता है कि इंसान की फितरत में खता भी है और रुजू इला अल्लाह भी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को हुक्म दिया कि जन्नत से निकल जाओ और जमीन पर रहो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यूं हजरत आदम, हजरत हव्वा और इब्लीस तीनों जमीन पर उतार दिए गए। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अपने रब से मुआफी के कलमात सीखे और सच्चे दिल से तौबा की। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया। फिर वो अपनी ज़ौजा को तलाश करते रहे, यहां तक कि मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हुई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। सबसे पहला जोड़ा काबील और उसकी बहन तेमान था और यूं जमीन पर नस्ले इंसानी की इब्तदा और अफसाइश शुरू हुई।
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया। इसी निस्बत से आपका नाम आदम रखा गया और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम से मंसूब कहा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मट्टी से पैदा किया गया उसी मट्टी से खजूर का दरख्त भी वजूद में आया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद आदम की बाकी मानदा मट्टी से पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मट्टी से पैदा फरमाया, फिर उनकी पसली से हजरत हवा को पैदा किया। जब आपने उनकी तरफ मोहब्बत का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा, पहले उनका महर अदा करो। आपने पूछा, उनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज किया, उनका महर यह है कि आप हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पढ़ें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद शरीफ पढ़ा और फरिश्तों की गवाही के साथ निकाह हुआ। इससे जाहिर होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बरकत और रहमत का वसीला है। यहां तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 960 साल की जिंदगी अता हुई। जब वो जन्नत में थे तो अल्लाह ने उनके सामने उनकी सारी नस्ल, उनके अंबिया, उनकी उम्रे और मरातिब जाहिर कर दिए। उन्होंने अपनी नस्ल में एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी उम्र 60 साल लिखी थी। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल उसे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने आदम को 2 बेटों हाबिल और काबिल से नवाजा, मगर शैतान के वसवसों के सबब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, जिससे हजरत आदम अंदर से टूट गए और बारहा अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहे। एक दिन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए और खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें एक बेटा दिया जाएगा जिसके नसब से अंबिया और औलिया का सिलसिला जमीन तक पहुंचेगा। उसका नाम शीत रखा गया, यानी अल्लाह का अता किया हुआ तोहफा। यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पर जारी रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटों से फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत का फल खा लूं। बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढते फिरे तो उन्हें फरिश्ते मिले और बोले, ए बनी आदम, तुम्हारे बाप चंद दिनों के मेहमान हैं। सब फर्जंद दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बीमारी में थे और उसी असना में मलिक मौत हाजिर हुआ। जब हजरत हवा ने मलिक मौत को देखा तो हजरत आदम से लिपट गई। आपने नरमी से कहा, ए हवा, मुझसे दूर हो जाओ, पहले भी तेरी वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया था। आज अल्लाह और उसके फरिश्तों मैं हायल न बनूं। आपने फरिश्तों से पूछा कि क्या मौत भूल न गई? आपको याद था कि तेरी उम्र 1000 साल रखी गई थी, मगर 960 साल हो चुके हैं। मलिकुल मौत ने अर्ज किया कि आपने खुद दुआ की थी कि 40 साल तुम्हारे पोते को मिले, लिहाजा अब वक्त आ गया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हुई। फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, जन्नत की खुशबू आपके बदन पर लगाई गई। नमाज जनाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में अदा हुई, जमीन खोदी गई और आपकी तदफीन हुई। और इसी दिन से तमाम इंसानों के लिए वही तरीका तदफीन मुकर्रर हुआ जिस पर अहले ईमान आज भी अमल करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता पहुंचा तो आपने अपने जानशीन हजरत शैस अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया, ए मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना है कि एक बड़ा तूफान इस जमीन पर आने वाला है। अगर तुम इस वक्त तक जिंदा रहे तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार कर देना जो निजात का जरिया होगी, और अगर तुम इस वक्त तक जिंदा ना रहे तो अपनी नस्ल को वसीयत कर देना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा है कि जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को सवार किया और फिर बैतुल मुक़द्दिस या इराक के एक मुकाम पर उन्हें दफन किया, जहां आज तक उनकी कबूर का तस्करा मिलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बीमार हो गई तो आपके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया, हमारी माँ का जिस्म भी हमारे बाप की तरह बेजान होने लगा है। ये सुनकर तमाम औलादे हव्वा उनके गिर्द जमा हो गई,
मगर हजरत हव्वा ने निहायत सुकून से सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया, अभी बाहर जाओ, मुझे फरिश्तों से मिलने दो, जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो तुम अंदर आ जाना। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी अलैहिस्सलाम ने इमाम कुर्तुबी की मशहूर तफसीर कुर्तुबी के हवाले से तहरीर फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि जन्नत के फल बाफरागत खाते रहो, ना उन्हें हासिल करने में मेहनत की जरूरत होगी और ना ही फिक्र के ये गजा कभी खत्म हो जाएगी। फिर एक खास दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया गया कि इसके करीब न जाना। मकसद ये था कि उसका फल न खाना, मगर ताकीद के तौर पर यूं फरमाया कि उसके पास भी न जाना। कुरान ने उस दरख्त की तायीन नहीं की और ना ही किसी मुस्तनद हदीस में उसका नाम आया है। मुफस्सरीन में से बाज ने कहा वो गंदम का दरख्त था, कुछ ने अंगूर का, कुछ ने अंजीर का, मगर जिसे कुरान और हदीस ने मुबहम छोड़ा उसे मुतय्यन करने की जरूरत नहीं। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन्हें हर सनत और कारीगरी सिखा दी गई और जन्नत के फल बतौर तोशा उनके साथ कर दिए गए ताकि वो जान ले कि जमीन के फल दरअसल उन्हीं जन्नती नेमतों की असल है। हाँ, सिर्फ इतना फर्क है कि जमीन के फल वक्त के साथ सड़ जाते हैं, जबकि जन्नत के फल हमेशा ताजा और कायम रहते हैं। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर भी हजरत आदम और हजरत हव्वा की तरबियत खुद फरमाया करते थे और उन्हें हर फन सिखाते थे। कसस इब्ने कसीर सफा 79। सलाम की इब्तिदा भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और कयामत भी उसी दिन आएगी। जामे तिर्मिजी हदीस 428। दुनिया में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ही अदा किए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। उनका कद 60 हाथ था। जब उनकी तख्लीक मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, जाओ और उन फरिश्तों को सलाम करो जो बैठे रहे और सुनो कि वो तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के करीब गए और कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। बस जो भी जन्नत में जाएगा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्लो कामत पर जाएगा। उसके बाद से इंसानों के पद आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए और ये सिलसिला आज तक जारी है। सही बुखारी हदीस 627। इस्लाम में सलाम को आम करने की बड़ी ताकीद की गई है। सही बुखारी की इस हदीस से मालूम हुआ कि अस्सलामु अलैकुम का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया और फरिश्तों ने इसमें वरहमतुल्लाही का इजाफा किया। सलाम दरअसल इस्लाम की पहचान है, एक ऐसी दुआ है जो मोहब्बत, अमन और खैर खाही का पैगाम देती है। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, अपने घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक अहले खाना पर सलाम न भेज दो। सूरह नूर आयत 27। इसी सूरह मुबारका में एक और जगह फरमाया गया, तर्जुमा, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। सूरह नूर आयत 27। सही बुखारी की हदीस में है, हर शख्स को सलाम किया करो, खा तुम उसे जानते हो या नहीं जानते। सही मुस्लिम की हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दरमियान सलाम को आम करो। जामे तिर्मिजी की हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम को अपने दरमियान आम करो। अफसोस के आज के दौर में ये सुन्नत नबवी कमजोर होती जा रही है। अक्सर पढ़े लिखे घरानों में भी अस्सलामु अलैकुम के बजाय आदाब, सुबह बखैर, शब बखैर और जवाब में तस्लीम या जीते रहिए जैसे अल्फाज आम हो गए हैं। मालूम नहीं ये खानदानी रवायत के तौर पर किए जाते हैं या फैशन के तौर पर, मगर हकीकत ये है कि अगरचे ये सब अच्छे दुआइया कलिमात है, लेकिन ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का नैमुल बदल नहीं हो सकते। हाँ, अगर अस्सलामु अलैकुम के बाद इस्तेमाल किए जाएं तो दुरुस्त हैं। सलाम की सुन्नत हमें मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती है।
اسی لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس سنت پر عمل کریں اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مٹی کے اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نہایت بلند قامت انسان تھے، گویا اونچے لمبے کھجور کے درخت کی مانند۔ آپ کے سر میں گھنے بال تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس زمین سے پیدا ہوئے اسے وہنا کہا جاتا ہے، یعنی بلند اور اونچی زمین۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا کہ وہ ادیم ارض یعنی زمین کی سطح سے پیدا کیے گئے، اور انسان اس لیے کہا گیا کہ ان سے بھول چوک سرزد ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین پر بھیجا، جس نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کی۔ کسی جگہ کی مٹی شیریں تھی، کسی کھاری، کسی ریتیلی اور کسی نرم و عمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی مختلف مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جو شیریں زمین سے پیدا ہوا وہ جنتی ہے، اور جو کھاری یا سخت مٹی سے پیدا کیا گیا وہ جہنمی ہوگا۔ اسی وجہ سے ابلیس نے غرور میں کہا تھا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود یہی مٹی لا کر لایا تھا۔ یہی مٹی کا اثر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں رنگ و مزاج کا فرق ہے۔ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید، کوئی کالا اور کوئی درمیانی رنگت والا، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت، کوئی خبیث اور کوئی طیب۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اہل جنت اس حال میں ہوں گے کہ نہ ان کی داڑھی ہوگی نہ مونچھیں، بال گھنگریالے ہوں گے، آنکھیں سرمانگے، عمر 33 سال ہوگی، قد 60 ہاتھ لمبا اور چوڑائی 7 ہاتھ، بالکل ویسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ طبقات ابن سعد صفحہ 50۔ پہلی بار جو لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیا وہ الحمدللہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی اور ناک و آنکھوں تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اسی لمحے اللہ نے فرمایا یرحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ سنن ترمذی حدیث 383۔ پھر جب اللہ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی ساری نسل ظاہر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا، ان میں ایک شخص کے چہرے کے درمیان خاص نور چمک رہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا، اے رب، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، یا رب، یہ تو بہت کم ہے، کچھ زیادہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، مگر اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں سے کچھ سال دے سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، میری عمر میں سے 40 سال اسے دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال بڑھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال مقرر تھی۔ جب 960 سال پورے ہوئے تو ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کیا، اب چلنے کا وقت آ گیا ہے، دنیا میں آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا، وہ تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ اسی دن سے ان کی اولاد میں بھی انکاری ہونے کی عادت چلی آئی۔ جیسے جنت میں شجر ممنوعہ کے بارے میں اللہ کی ہدایت بھول گئے تھے، ویسے ہی ان کی اولاد بھی بھولنے والی بنی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث 370۔ ابن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال کی عمر مکمل فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پورے 100 سال عطا کیے۔ اسی واقعے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر وعدہ، معاہدہ اور وصیت کو تحریری شکل میں
लाया जाए ताकि भूल या इनकार की गुंजाइश बाकी न रहे। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में सूरत उन-निसा में इरशाद बारी ताला है, ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत फैलाए। सूरह निसा आयत 1। यहाँ एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उसका जोड़ा से मुराद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। मुफस्सिरीन के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ है कि हजरत हव्वा किस तरह पैदा हुई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत का ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर होता है। अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर उसे जैसे है वैसे छोड़ दोगे तो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा औरतों से हुस्ने सलूक करो। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो और इनसे अच्छा सलूक करो। सही बुखारी 3371 6086। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम हव्वा इसलिए रखा गया कि वो हर जानदार इंसान की माँ है। एक और रिवायत में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकले, यहां तक कि एक मकाम पर दोनों की मुलाकात हुई जिसे मुज़दलिफा कहा जाता है, यानी करीब होना। इसी निस्बत से इसका ये नाम रखा गया। तबकात इब्ने साद सफ़ा 57। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा ले गए, जहां आपने खाने काबा की तामीर की। हिजरे अस्वद जो आप जन्नत से लाए थे उसे काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर आपने बैतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको जबल अरफात पर ले गए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात दोबारा हुई। अहले इल्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के बुलंद तरीन पहाड़ वासम, जिसे आज आडम्स पीक कहते हैं, पर उतारा गया। कदीम जमाने में यह जजीरा बरसगीर के जनूबी हिस्से से मिला हुआ था। मारूफ सयाह इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में जिक्र किया है कि यह पहाड़ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक है। वहां तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक को बाबा आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता और दूसरे को अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का रास्ता कहा जाता है। बा वाला रास्ता निहायत दुश्वार गुजार है। पहाड़ की चोटी पर कदम शरीफ के नाम से एक जगह है जहां एक सख्त पत्थर पर कदम के निशान हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 11 बालिश्त बयान की जाती है। अलबत्ता कुरान और हदीस में इस बात की कोई मोतबर सनद मौजूद नहीं। ये तफसील इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में बयान की है। वो मोहम्मद तगलक के दौरे हुकूमत 1333 ता 1342 में बरसगीर में मुकीम रहा और मोहम्मद तगलक ने इसे दिल्ली का काजी मुकर्रर किया था। निशानात अर्ज़ कुरान सफ़ा 15। अल्लाह ताला की हिकमत बे इंतहा और उसके राज लामहदूद है। जमीन और आसमान की कोई मखलूक खाह कितनी ही बुलंद मर्तबा क्यों ना हो, उसके भेदों तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। वो फरिश्ते जो शबो रोज इबादत में मसरूफ रहते हैं, वो भी खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम की हिकमत को न समझ सके और हैरत में पड़े रहे। एक मुश्त खाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करके उन्हें खलीफतुल्लाह के अजीम मनसब पर फाइज करना और अशरफ अल मखलूकात के बुलंद तरीन लक़ब से नवाजना सिर्फ रब्बे जुल जलाल की कुदरत व कमाल का मजहर है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत, अकल, इल्म और समझ बूझ अता फरमाई। आप ही वो पहले नबी और पहले इंसान हैं जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को अपनी औलाद में फैलाया। आपको 1000 साल की उम्र अता हुई। जब आपके 960 साल पूरे हुए तो मलकुल मौत आपके पास आए और अर्ज किया कि ए आदम, अब आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अल्लाह का हुक्म है कि आपकी रूह कब्ज की जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो 40 साल बाकी है। मलकुल मौत ने कहा कि वो 40 साल तो आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। इस पर आपको याद आया कि वाकई ऐसा ही हुआ था, मगर आपने फरमाया कि मैं भूल गया था। उस दिन से ही भूलने की आदत इंसानों में आ गई। आपने वसीयत फरमाई कि मेरे बाद तुम अल्लाह की इबादत करना, किसी को
से साथ शरीक ना ठहराना, अपनी औलाद में नेकी और इंसाफ को आम करना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया तो फरिश्ते उनके पास जन्नत के कफन और खुशबू लेकर आए। उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी औलाद को एक नसीहत देना चाहता हूं। फिर उन्होंने अपने बेटों से कहा कि अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वही सबका खालिक व मालिक है। फिर आपकी रूह कब्ज कर ली गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन वफात हुई और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत शीत अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्तों ने उन्हें दफन किया। उनकी कब्र जबल अबी कबेस मक्का के करीब में बताई जाती है। बाज रवायात में है कि उन्हें जबल सरानदीप में दफन किया गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी औलाद में वक्त के साथ साथ नेकी कम और बदी ज्यादा होने लगी। शुरू में तो तमाम इंसान एक ही दीन पर थे, सब अल्लाह की इबादत करते थे, कोई शिर्क नहीं करता था। मगर वक्त गुजरने के साथ जब नेक लोग फौत होने लगे तो शैतान ने उनके बच्चों के दिलों में वसवसा डाला कि अपने बुजुर्गों की यादगार के तौर पर उनकी तस्वीरें बना लो ताकि उनकी नेकी याद रहे। लोगों ने तस्वीरें बनाकर अपने घरों और इबादत गाहों में रख ली। फिर जब वो नस्ल भी खत्म हुई तो आने वाली नस्ल ने शैतान के कहने पर उन तस्वीरों को पूजना शुरू कर दिया। यूं दुनिया में सबसे पहले शिर्क और बदपरस्ती का आगाज हुआ। पहले लोग नेक बंदों की मूर्तियां सिर्फ यादगार के तौर पर रखते थे, मगर शैतान ने उन्हें धोखा दिया कि ये तुम्हारे रब के करीब करने वाले हैं। और इस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों के सामने झुकने लगे। जिन बुतों के नाम कुरान में वुद, सवा, यगूत, यऊक और नस्र के तौर पर आए हैं, ये सब दरअसल नेक लोग थे जिन्हें बाद में उनकी कौम ने माबूद बना लिया। अल्लाह ताला ने फिर उनके लिए नबी नूह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें शिर्क से बचाकर तौहीद की तरफ बुलाए, मगर बहुत कम लोगों ने उनकी बात मानी और ज्यादातर ने इनकार किया। यही वो जमाना था जब जमीन पर पहली बार बुत परस्ती आम हुई और यही इंसान की गुमराही का आगाज था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात को कुछ अरसा गुजर गया तो उनकी औलाद में मुख्तलिफ नस्लें फैल गईं। हर कौम ने अपने इलाके में आबाद होकर खेती बाड़ी, तिजारत और रहन सहन के तरीके इख्तियार किए, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से वो नूर और ईमान की रोशनी कम होने लगी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। शैतान, जो हजरत आदम के वक्त से ही इंसान का दुश्मन था, उसने मौका देखकर लोगों को दोबारा गुमराही की राह दिखाना शुरू कर दी। वो उनके पास आकर कहता कि तुम्हारे जो बुजुर्ग गुजर गए वो बहुत नेक और पाकीज़ा थे। अगर तुम उनकी याद में कुछ अलामतें या मुजस्समे बनाओ तो अल्लाह खुश होगा, क्योंकि तुम उनकी नेकी को जिंदा रख रहे हो। शुरू में लोगों ने वाकई उन मुजस्समों को यादगार के तौर पर बनाया और उनकी ताजीम को इबादत नहीं समझा। वो उनके सामने सिर्फ अकीदत के इजहार के लिए बैठते। मगर वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे नस्लें बदलती गईं, उन लोगों ने उन मुजस्समों को सजदा करना शुरू कर दिया और उन्हें रब के करीब करने वाले वसीले समझने लगे। यही वो लम्हा था जब दुनिया में सबसे पहले शिर्क का दरवाजा खुला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग एक ही उम्मत थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ किया तो अल्लाह ने नबी भेजे जो खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे। यानी इंसान इब्तिदा में सब एक अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन बाद में शैतान ने उनके दरमियान फर्क डाल दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जमीन पर उनके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और फरमाया कि ए लोगों, याद रखो कि हमारे बाप आदम ने हमें वसीयत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, मगर फिर भी लोगों ने दुनिया की जेब व जीनत में दिल लगा लिया, गुनाहों में पड़ गए और बुतों की परस्तिश शुरू कर दी। जब ये शिर्क आम हो गया तो अल्लाह ताला ने एक और नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया ताकि वो लोगों को दोबारा हिदायत की तरफ लाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म तहरीर, दर्जी का हुनर और हिसाब किताब की तालीम दी ताकि लोग इल्म की रोशनी में जिंदगी गुजारें। मगर बदकिस्मती से शैतान का फितना बढ़ता गया। लोग बुतों के नाम पर झगड़ने लगे। हर कबीला अपने बुत को सबसे बड़ा मानता। यूं इंसानों में तफरका बढ़ा।
दिलों से मोहब्बत और भाईचारा खत्म होने लगा। यही वो दौर था जब दुनिया में पहली बार जुल्म, हसद और लड़ाइयां शुरू हुई। जमीन पर खून बहना शुरू हुआ। कौमें ताकत के नशे में कमजोरों को दबाने लगीं। अल्लाह की नाफरमानी आम हो गई। मगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इंसानों को कभी बेराह नहीं छोड़ा। वो बार बार अपने अंबिया भेजता रहा ताकि इंसानों को याद दिलाया जाए कि असल माबूद एक ही है, वही खालिक व मालिक है। मगर शैतान भी इंसानों के साथ कदम कदम पर मौजूद रहा ताकि उन्हें फिर से गुमराही की तरफ ले जाए। इसी तरह बदपरस्ती का वो निजाम जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शैतान ने शुरू करवाया था, बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक इतना मजबूत हो गया कि पूरी जमीन पर अल्लाह को मानने वाले बहुत कम रह गए थे। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो इस शिर्क को खत्म करें और इंसानियत को फिर से एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। हजरत इंसान को रब ने जलालत व बुजुर्गी समेत आला से आला शर्फ अता फरमाया, लेकिन खल्की व तबाई कमजोरियों के नकाइस की बना पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम निस्यान में मुब्तला होके शैतान के वसवसों का शिकार हो गए। मगर यह भी हकीकत है कि खताकार बंदा अगर खुलूस व सदाकत के साथ नदामत व तौबा की तरफ माइल हो जाए तो बाबे रहमत कभी बंद नहीं होता। जबकि इब्लीस की हजारों साल की रियाजत व इबादत तकब्बुर व नाफरमानी के एक वाक़े से बर्बाद हो गई और उसे मरदूद करार देकर जन्नत से निकाल बाहर किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें तुम्हारी ऐसी इबादतों की जरूरत नहीं जिनमें गुरूर व तकब्बुर हो। बलाशबा ये किस्सा सरमाया 100,000 इबरत है। आमीन या रब अल आलमीन। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतार से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। इसी मोहब्बत में दीन और दुनिया की कामयाबी है। नाजरीन, आप भी कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें।